आज भारतीय अर्थव्यवस्था अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ कदम ताल कर रही है और ये विकास का वो पहिया है जिससे जुड़ जाने से हम अपने लक्ष्य यानी कि विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम T20 स्टाइल में तेजी के साथ इस नए भारत की एक स्टार्टअप गैलरी आपको दिखाते हैं, जहां पर हम ट्रेडिशनल जॉब थॉट प्रोसेस से कैसे खुद को अलग कर सकते हैं ये आपको समझ आएगा। और इसके लिए आपको इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के कुछ चैंपियन से भी मिलना होगा। 2014 से पहले भारत लगभग 100% मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करता था और अब हम अपने लगभग 100% मोबाइल फोन खुद ही बना रहे हैं। इसको लेकर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन सुनील वछानी को भी आपको सुनना चाहिए, जो ये कहते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज देश में गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन बनाएगी। Honorable Minister, the Josh is so high now that we are looking at almost $100 billion worth of exports of mobile phones alone happening from the country. But I think the biggest change, according to me, that has happened is a change in the mindset of Indian entrepreneurs. And this happened because of the call that our Honorable Prime Minister gave almost 10 years back, that let's make in India. Let's make India the next hub for manufacturing for the world. And I think this is the biggest change that has happened. So thank you, Honorable Prime Minister, for that. ऑफ बिजनेस के फाउंडर नितिन जैन कहते हैं कि वो साल 2014 में यूके से भारत लौटे थे और आज उन्होंने भारत के अंदर 2 यूनिकॉर्न बना दिए। ये अपनी इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। I was sitting in London in 2014, and as soon as I'm not just saying this because I'm here, but as soon as the Modi government got elected, me and my wife, both our minds started thinking that अब वापस अपने देश जाना है, वापस हिंदुस्तान जाना है। 2015 is actually when we made the move back and looking at our idols, Deepinder, Jonathan, and the concepts from Flipkart, they inspired us a lot to come back. And I came and started my entrepreneurial journey. Now it's been 9 years, and then we've sort of incubated 2 unicorns, and we are now empowering 1 million SMEs. अर्बन कंपनी के संस्थापक अभिराज भाल का कहना है कि मोदी सरकार ने कुशल कार्यबल तैयार करने में हमारी मदद करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि हजारों पेशेवर घरेलू सेवाओं के लिए कुशल और विश्वसनीय बन सके। अर्बन कंपनी देश के 62 शहरों में 57,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। The last 10 years that we've seen, which will only unlock India's potential in the coming 10 years. For the next 5 years, my humble submission would be the government is on a fast-track mission of infrastructure development and reforms that should continue, and I'm sure India's potential will be unlocked. वहीं पर मामा अर्थ कंपनी के संस्थापक वरुण अलग ने भी मोदी सरकार के कार्यों की सराहना की। साथ ही कहा कि हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। हमने 2016 में अपनी कंपनी शुरू की थी और आज हम 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। We come from middle class families, me and my wife Ghazal. 2016 was the year when Startup India was started, and that's the year when we quit our jobs and decided to start this company. And in just 7 years, we've been able to take the company public. We employ over 10,000 people now. And that's the story of New India. That's what's possible today. जोमैटो से खाना तो शायद आपने भी ऑर्डर किया होगा। इस कंपनी के सीईओ दीपेंद्र गोयल का कहना है कि मोदी सरकार की पहल ने मेरे जैसे छोटे शहर के लड़के को सक्षम बनाया, जिससे लाखों लोगों को आज रोजगार मिल रहा है। I come from a small town in Punjab. That's the background. But over the last 16 years, I think a lot has changed, especially over the last 7, 8, 10 years as well. As Raju ji said, the government has really gotten out of the way, and thank you so much for that. And I hope that it continues in good ways. ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने सरकार की मदद से खुद की कंपनी शुरू की, खुद को रोजगार दिया, साथ ही अपने नीचे हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी दिया। अपने जीवन में बदलाव लेकर आए तो साथ ही देश में भी बदलाव में योगदान दिया। ये स्टार्टअप सिस्टम की ताकत है जिसे दुनिया ने भारत के साथ इंट्रोड्यूस तो काफी पहले किया था,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नए भारत की विकसित तस्वीर में ब्रेक दिया है, यानी कि इसे लॉन्च किया है और ये एक सफल पिक्चर साबित हुई है। इसीलिए आज पूरा भारत ये समझ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज इन द एयर एंड न्यू इंडियाज यूथ इज राइटिंग दिस कैप्टिवेटिंग जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंस्पिरेशन एंड अनयील्डिंग पैशन। और हाँ, वो तो आपने सुना ही होगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।